Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12 and it's chapter number 1, which is functions and limits. Today is our lesson number 5. So let's begin our lesson. Today in this lesson we will solve some more questions of exercise 1.1. The lesson objectives are that after this lesson you will be able to know the parametric functions and parametric equations, and you will be able to solve problems related to parametric functions and parametric equations. This is question number 6 of exercise 1.1. Earlier in the previous lessons we solved from question number 1 to 5. This is question number 6, which is similar questions which you have solved in your physics. A stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x seconds is approximately given by this formula. आपने इस फॉर्मूला को यूज करके इस क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. अब यहाँ पे टाइम को उसने x से रिप्रेजेंट किया है, जबकि फिजिक्स में टाइम को आप t से रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पे हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हमने इसके बाकी जो पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करना है. दिस इज अ स्टोन. दिस स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर. So after its drop, what is the height after 1 second? This is the formula to measure the height. In this formula, we will put x is equal to 1 to find the height of the stone after 1 second when it is dropped. Put x is equal to 1 in this equation and calculate to get the answer of this part. Second part of B part of first. Now we will put x is equal to 1.5 in the same equation. Putting the value and simplifying, we get the required answer, which is 17.5. So when the stone is dropped and after 1.5 second, its height is 17.5. h of x, same formula, and now we will find the height when x is equal to 1.7. Put x is equal to 1.7 in this equation and simplify. Taking square of 1.7, we get 2.89, multiplied by 10 and we get 28.9. 40 minus 28.9 is equal to 11.1. So this is the answer of part C. Now to answer part 2 of this question, when does the stone strike the ground? You know that when this stone will strike the ground, the height will become 0. So in this formula, we will put h of x equal to 0 and we will find the value of x. When stone strikes the ground, h of x will be equal to 0. Simplifying this, 10x square is equal to 40, x square is equal to 4, and taking square root of both sides, we get x is equal to plus minus 2. Because you are calculating time and time cannot be negative, so x is equal to 2 seconds. So after 2 seconds the stone will strike the ground. So this is question number 6. Now we will solve question number 7. Question number 7 is about parametric equations and parametric functions. This is important for your MCQ. You will be asked to tell the parametric equation of parabola. In the question, x is equal to 80 square, y is equal to 280 represents the parametric equation of. In the option you may be given some names and one of them will be parabola, so you will have to take the parabola. So these are the parametric equations of a shape, and you are asked to show that this parabola, these parametric equations represent this equation.
तो आपने इनको यूज करके, ये जो गिवन है इनको यूज करके ये वाली इक्वेशन जो है वो प्रूव करनी है। ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा इल्यूमिनेशन। देखें इसमें टी है, इस जो आपने प्रूव करना है उसमें टी नहीं है, तो इसका मतलब है हम इन दोनों में से टी को इल्यूमिनेट करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो लेट्स सॉल्व दीज 3 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. Now this is question number 7, its first part. X is equal to 80 square, y is equal to 280 represent the equation of parabola y square is equal to 4ax. तो इसका मतलब पैराबोला ये इसका फंक्शन है, y square is equal to 4ax, ये y और x में एक रिलेशन है, फंक्शन है जो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। और ये दो इक्वेशंस हैं x और t और y और t में t इसका पैरामीटर है, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं जो पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि दीज आर दी, ये क्वेश्चंस में हो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट्स, आगे ऑप्शन में पैराबोला हो और 3 और नाम दिए हुए हो, या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज दी इक्वेशन ऑफ, इसी तरह ऑप्शन में पैराबोला और नाम दिए हुए हो, या द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला आर, ये क्वेश्चन हो और ऑप्शन में ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हो, या ये भी हो सकता है द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग पैराबोला इज, आगे ऑप्शन में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और कुछ और इक्वेशंस भी दी हुई हो। इसकी एक इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay भी होती है, उसको भी आपने माइंड में रखना है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वो भी पैराबोला ही होता है। तो अब हम प्रूव करते हैं कि ये दो इक्वेशंस जो हैं ये इस वाली इक्वेशन की ही को रिप्रेजेंट करती हैं। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमने ये प्रूव करना है इन दो इक्वेशंस को लेके, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, इनमें से हमने t को इल्यूमिनेट करेंगे तो हमारे पास ये वाला फंक्शन आना चाहिए। तो इसमें इक्वेशन नंबर 2 में से t की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, t इज इक्वल टू y ओवर 2a, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। x इज इक्वल टू a, t की वैल्यू पुट की और इसका स्क्वायर लिया, सिंप्लीफाई किया तो x इज इक्वल टू a y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, दिस a स्क्वायर इज कैंसल्ड विद दिस पावर एंड वी गेट x इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 4a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ax इज इक्वल टू y स्क्वायर आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच इज सेम एज इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 जो है वो पैराबोला की इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो इस पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये इसका प्रूफ है। नाउ इट्स सेकंड पार्ट भी उसी तरह। अब ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इसमें पैरामीटर थीटा है, इधर पैरामीटर टी था, इधर पैरामीटर थीटा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब उसी तरह ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये दो पैरामीटर इक्वेशन किस शेप को रिप्रेजेंट करती है। इलिप्स को रिप्रेजेंट करने वाली जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो ये है, और इलिप्स को रिप्रेजेंट करने वाला जो फंक्शन है उसकी इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एमसीक्यूज में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो प्रूफ इसका हम ये करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को लेके हमने ये प्रूव करना है। So equation of ellipse which is given x square over a square plus x square over b square is equal to 1. Put this equal to 1. Now take these two parametric equations. X is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta. From here take x over a. अब देखिए जो प्रूव करना है उसमें x over a था, तो यहाँ से हमने cos theta को सेपरेट कर लिया। x over a is equal to cos theta. सिमिलरली y इज इक्वल टू बी साइन थीटा में से y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा कर लें। अब यहाँ पे x स्क्वायर ओवर a है, जो हमें दिया हुआ है उसी को यूज करना है हमने, तो इधर इसका स्क्वायर ले लें और इसका स्क्वायर लेके इनको ऐड कर दें। सो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करें, इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करें और इन दोनों को ऐड कर दें।
लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दें, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड कर दें स्क्वायर लेके। इसका स्क्वायर आएगा x ओवर a होल स्क्वायर प्लस y ओवर b होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। इसे जब आप ब्रैकेट से रिमूव करेंगे तो ये x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, विच इज सेम एज इक्वेशन नंबर 1, and equation number 1 represents ellipse and these are the parametric equations of the ellipse. So this is the proof of this part. Have a look. So let's solve its third part. In this part x is equal to a secant theta, y is equal to b tan theta represent the equation of hyperbola. अब ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हैं वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती हैं। हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस कौन सी हैं? ये वाली। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और इसी तरह ये वाला फंक्शन किस का है? हाइपरबोला का। और हाइपरबोला का फंक्शन कौन सा है? ये वाला। आइए इसको प्रूव करते हैं। ये इक्वेशन है हाइपरबोला की और इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो ये है, x इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा। यहाँ से x ओवर a की वैल्यू निकाली, इसको नंबर 1 कह दिया। दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन y इज इक्वल टू b tan थीटा में से हमने y ओवर b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इन दोनों का स्क्वायर लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें यहाँ पे माइनस का साइन है। स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, x ओवर a स्क्वायर माइनस y ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू a सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में का स्क्वायर लेके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और राइट हैंड साइड के स्क्वायर्स को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी थी, जो 3 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी उनमें से एक आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें। x ओवर a स्क्वायर माइनस वाई ओवर b होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दिया माइनस tan स्क्वायर थीटा। नाउ दिस tan स्क्वायर थीटा इज कैंसिल विद tan स्क्वायर थीटा। तो आपके पास x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, विच इज सेम एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सो विच प्रूव्स द क्वेश्चन। नाउ हाइपरबोलिक फंक्शन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशंस ये हैं, साइन हाइपरबोलिक x, अगर x है तो e की पावर x आएगा, अगर यहाँ पे थीटा है तो e की पावर थीटा आएगा। जो भी यहाँ पे वेरिएबल है वो e की पावर में चला जाएगा। साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 e टू रेज पावर x माइनस e टू रेज पावर माइनस x। कॉज हाइपरबोलिक x वही फार्मूला है लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो गया। tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, आपको पता है साइन ओवर कॉज tan के इक्वल होता है, तो 1 ओवर 2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। साइन का रेसिप्रोकल कॉज को सीकेंट हाइपरबोलिक, कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंट हाइपरबोलिक, tan हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल कॉट हाइपरबोलिक x आ जाएगा। तो ये आपसे एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है कि साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, आगे ऑप्शन में इनमें से कोई एक दी हुई हो, एक ये होगा और इनमें से बाकियों में से कुछ हो सकती है, तो करेक्ट ऑप्शन को आपने टिक करना है। या क्वेश्चन में ये लिखा हुआ 1 ओवर 2 e टू रेज पावर x माइनस e टू रेज पावर x इक्वल्स टू व्हाट, आगे ऑप्शन में साइन हाइपरबोलिक x, कॉस हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक x लिखा हुआ हो, तो आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो ये फार्मूलाज जो हैं, ये डेफिनेशंस आपने याद करनी है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 8 के इन 3 आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे जब आपको ये फार्मूलाज जो हैं वो याद हो जाएंगे। तो ये फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। तो इसी वीक में इंशाल्लाह फ्राइडे सैटरडे तक ये क्वेश्चन नंबर 8 वाला जो लेसन है उसको हम अपलोड कर देंगे। आज हमने यहाँ तक ही इस लेसन में करना है। दिस इज माय प्रोफाइल। You are requested to subscribe this channel and send me your problems at this WhatsApp number or this email address.
मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ आपकी ग्रिप में आएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स नॉलेज परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। बी वेरी फेयर इन लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप ज़रूर लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करने में हर्ज कोई नहीं है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, आपकी समझ में नहीं आया, तो आप इसको डिसलाइक भी कर दें। आई विल नॉट माइंड इट। मुझे कौन सा पता कि किसने लाइक किया किसने डिसलाइक किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।